Okay. So keep your cameras on. I think only Divya is here. Great. Okay. Just a minute. I'll just blur my background. Okay. Right. So let's start with the session. We'll be learning about grids, iconography, and typography today. Okay. So let me just open the files for you and we'll start with the session. Hi, ma'am. One thing, before classes, do you update in that group regarding classes? Regarding UX classes last session. Okay. update about what? You have you shared this recording video last UX class? Recording, no? Yes. So recordings, I think link is been shared on the group, right? Okay. And you can just click on that link. It will ask you for the password. Password is also been shared on the group. Enter that password and watch the recordings. Yeah, okay. I've seen I'll reshare last it. week classes. Yeah, Yes. this week classes I'm asking about. Yes, I'll reshare the link again. So then Okay. it will be easy. Okay. Okay. All Thank right. So let's start with the session. Okay, so we'll be having UI session today. As you know that Fridays are recommended for UI sessions. We'll be learning about grids first of all. So let's start with the grid. I'll make you understand how the grid system works in Figma. So there is a standard way of having grids in all of the screens that you design. Okay. So we'll learn about what those standards are and why it is important to have grids, grid layout when you design any UI screen. Okay. So initially when we do the designing part, we have three screens. First is we design applications on mobile screen. Also websites and all is viewed on a mobile screen. Then we have tablet screen and then we have desktop screen. So whenever you work on any kind of project, you usually design for the mobile screen and desktop screen because the designs should be responsive, right? So for this different types of screen, we have layout. Now, first I'll make you understand how to take a layout, grid layout, and then I'll tell you the importance of the layout. So when you are on Figma, when you take any frame, okay, so layouts can be taken in a frame. So you have to select the frame. And then in the right hand side, you get the properties panel and you can see at the second last option is of layout grid. So click plus on the layout grid. So immediately you can see we have got horizontal and vertical lines making a grid pattern. So we have to make a settings. For mobile screen, we have a standard grid pattern. So वो अपने को करना है. So you see this small box over here which says layout grid settings. You go and click on this. And now you get this dialog box which says more settings. So grid को आप change करके columns लोगे. Okay. So now this is what the standard is all about. In the mobile screen, any screen. Okay. So let's say I can also take, this is an iPhone screen. So I can also take a Android compact screen. तो Android ले लो आप, iPhone ले लो, iPhone कौन सा size का आता है अभी, there are sizes, right? We have iPhone 16, we have iPhone 14, we have iPhone 13, iPhone SE. आप कोई भी मोबाइल स्क्रीन ले लो तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ग्रेड पैटर्न है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू मेक दैट स्टैंडर्ड ग्रेड पैटर्न जिसमें काउंट्स जो रहते हैं, दैट मीन्स कॉलम काउंट्स जो होते हैं, दैट इज 4 आर द कॉलम काउंट्स एंड मोर ओवर वी आर गोइंग टू चेंज मार्जिन्स. तो अपने को मार्जिन्स देने होते हैं, दैट इज 16 पिक्सल्स, ठीक है? And then we have something called as gutter.
विच इज 20 पिक्सल्स। तो ये बाय डिफॉल्ट 20 पिक्सल्स होता है, इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे। Okay, so let me make you understand what the count and the margin is. First of all, so over here you can see the columns. This is columns. Okay, तो इसको कहते हैं the count of column, 4 counts, right, of a column. तो you can count it 1 2 3 4. तो आप एंड्रॉयड को भी लोगे अगर ग्रिड पैटर्न में, तो आप ग्रिड ले लो, मोर सेटिंग्स में जाओ, कॉलम चूज करो, काउंट विल बी 4, मार्जिन विल बी 16। तो मार्जिन जो होता है दैट इज द स्पेसिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड लाइक दिस। तो ये जो है दिस आर कॉल्ड एज मार्जिन्स। तो मार्जिन्स का जो स्टैंडर्ड पैटर्न है दैट इज 16 पिक्सल्स मार्जिन। ओके, एंड आपको कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग्स दिख रहे, दैट स्पेसिंग इज कॉल्ड एज गटर्स। तो इनको कहते हैं, वी कॉल देम एज गटर्स। गटर्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे व्हाट आई डू इज I'll increase the count of column. Let's say I make it 8. So you can read, मतलब you can count. So there are total 8 columns inside this. ये स्टैंडर्ड नहीं है बट मैं बस आपको बता रही हूँ, स्टैंडर्ड इज 4। ओके, अगर मैं मार्जिन चेंज करूँ और बोलूँ कि आई वांट टू गिव 50 मार्जिन, so you can see the spacing from the left hand side and the right hand side is increased, and if you count it, it is 15. Okay, if I make it 5, so you can see again spacing is so small, right? और ये कैसे काउंट होता है बताइए? आप बहुत ज्यादा जूम इन करोगे ना, आपको दिखेगा एक छोटा सा ग्रिड दिखेगा, 1 2 3 4 5, इसको कहते हैं 5 पिक्सल्स। ठीक है, तो पिक्सल से अपनी डिजाइन बनती है, तो दैट वे ऑल्सो यू कैन काउंट इट, बट द स्टैंडर्ड आर गोइंग टू बी 16। एंड गटर, अभी गटर अगर मैं चेंज करूँ और बोलूँ 40, तो spacing in between the columns are getting column. increased. Yes, but nothing else is harmed. Okay, that means अब यहाँ पे भी आप देखोगे 16 का 16 margins are there. ठीक है, इसमें कुछ हार्म नहीं है, बस स्पेसिंग इंक्रीज हो जाता है इन बिटवीन द कॉलम्स, तो इसको भी स्टैंडर्ड से दैट इज 20। ओके, तो दिस इज व्हाट द कॉलम पैटर्न्स आर फॉर एनी काइंड ऑफ मोबाइल स्क्रीन। ऑलराइट, तो ये टर्म्स आप दिमाग में रखो कि इसमें इसको क्या कहते हैं, गटर्स कहते हैं, देन वी कॉल दिस एज कॉलम्स एंड वी कॉल दिस एज अ मार्जिन, साइड मार्जिन्स। एंड इसको आप बाय हार्ट कर लो कि अब अगर आप कोई भी मोबाइल फ्रेम में यूज करोगे तो 4 काउंट आना चाहिए, गटर आनी चाहिए 20 पिक्सल्स एंड मार्जिन्स आनी चाहिए 16 पिक्सल्स। ओके, now let me tell you the use of this. Why do we use the column grid pattern? तो ये होता है अलाइनमेंट के पर्पस से। We wholly and solely use the grid pattern for alignment। ठीक है, अगर आप इनिशियली कोई डिजाइन करते हो बनाने के लिए, डिजाइन लेते हो बनाने के लिए, सो अगर आपको इसमें डालना है रेक्टेंगल्स, तो आप को अगर ग्रिड पैटर्न्स नहीं पता है तो आप रैंडमली ऐसे यू नो करोगे, डालोगे कहीं पे भी ऐसे डिजाइन करते रहोगे, राइट? तो आप ये डिजाइन देखोगे इसमें कुछ अलाइनमेंट नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अलाइन नहीं कर पाते हो, जैसे अभी यहाँ पे ऐसे अलाइनमेंट चाहिए, प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, और आपको ये भी नहीं समझ रहा है कि भाई इस साइड से कितना स्पेसिंग जा रहा है, इस साइड से कितना स्पेसिंग जा रहा है, राइट? अगर आपने गलती से यहाँ पे एक आइकन डाल दिया, नाउ लेट मी सर्च फॉर अ प्रोफाइल आइकन। ठीक है, तो ये आइकन है, तो आपने मार्जिन्स नहीं डाला है एंड आपने ये आइकन डाल दिया यहाँ पे कॉर्नर में, राइट? तो आप इमेजिन करो, और आप
हमेशा डिजाइन चेक करते रहो, ठीक है। आई टेल यू वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू डिजाइन सर्टन थिंग्स, यू हैव फिग्मा ऐप। आप फिग्मा ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन में, ठीक है। आप अगर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो आप ये प्रोटोटाइप प्ले करो, मतलब ये स्क्रीन आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्ले बटन दिख रहा है, प्ले करो। आपको आपका डिजाइन दिखता है इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं एक्चुअली डालना चाहूंगी एक डिवाइस में। सो दिस इज आईफोन 14 में डालूंगी। तो देखो अब डिवाइस आ गया। ओके, सो यू कैन सी द डिजाइन, राइट। अभी आप देखो, मार्जिन्स के नहीं होने की वजह से प्रोफाइल का जो आइकन है वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है, आधा तो कट हो रहा है। एंड इमेजिन अ यूजर प्रेसिंग ऑन दैट आइकन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। इसके लिए मार्जिन्स यूज किए जाते हैं। तो अभी ये मैं डिलीट कर देती हूँ। लेट्स गो बैक ओवर हियर। एंड नाउ व्हेन आई वांट टू डिजाइन समथिंग, तो अगर मेरे को लेट्स से टेक्स्ट डालना है, हेलो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये टेक्स्ट मेरे को डालना है, तो मुझे समझ रहा है कि कहाँ पे मुझे अलाइन करना है, राइट। अगेन अगर मुझे आइकॉन्स डालने हैं तो मुझे समझ रहा है कि मुझे कहाँ पे अलाइन करने हैं। अभी ये क्या हो रहा है? ऑलराइट, तो अभी अगर इसको मैं प्ले करती हूँ, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, ये वाली आईफोन की स्क्रीन है, सॉरी। हेलो, यस नाउ इट इज गुड। गुड मॉर्निंग, राइट। इधर डाला एंड वी हैव आइकन, यहाँ पे अलाइन किया, इसको प्ले किया। नाउ यू सी हाउ परफेक्टली द डिजाइन लुक्स। और आप देख रहे हो स्पेसिंग कितने अच्छे से मेंटेन हो रही है। मोर ओवर, अगर मुझे इसके अंदर लेट्स से फोटोज भी डालने हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट फोटोज डालूंगी ऐसे में, ठीक है। इसको और ऐसे डुप्लीकेट करूंगी एंड और डुप्लीकेट, right? And now you can see over here, this looks in a perfect grid pattern. तो ये अलाइनमेंट के हिसाब से इसका यूज किया जाता है लेआउट ग्रिड का, ठीक है। if I go back and I just quickly put some images inside this to make the look make the UI look perfectly. So let me just put something minimal. Great, this is done. Now see, my UI is looking fabulous. बहुत अच्छा दिख रहा है, correct? And I can see alignment and all, everything is proper. So great. And आपकी जब डिजाइन हो जाती है, when your design is done, you can just hide your layout grid. तो यहाँ पे hide का एक बटन है, इसको hide कर दो, तो आपको दिख जाता है कि आपकी डिजाइन कितने अच्छे से दिख रही है, राइट। सो अभी आपको और एक डाउट आना चाहिए। द डाउट इज, अभी मैंने बहुत अच्छे से स्मार्टली आपको बता दिया कि यहाँ पे दो ही रेक्टेंगल्स है और वो लेआउट ग्रिड में अच्छे से बैठ रही है क्योंकि चार कॉलम्स है, राइट। बट व्हाट अबाउट, मतलब जैसे अगर मैं एक सॉरी सर्कल ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, और मेरे डिजाइन मेरे को पता है, तो लेट्स से मैं 75 बाय 75 का एक सर्कल करती हूँ और इसको प्रॉपरली ग्रिड के अंदर डाल देती हूँ। इसको डुप्लीकेट करूंगी तो अगेन प्रॉपरली ग्रिड के अंदर वो आ जाता है। कीप ऑन डुप्लीकेटिंग इट, ठीक है। तो अगर इसको मैं प्ले करके देखती हूँ तो आई कैन सी
प्रॉपरली ये ग्रिड में दिख रहा है। अभी ये तो बहुत स्मार्टली, सॉरी, ये तो बहुत स्मार्टली आपको लग रहा है, क्योंकि 4 कॉलम्स है तो 4 सर्कल इजी है। बट ऐसे भी डिजाइन होते हैं ना भाई कि जहाँ पे 5 सर्कल्स भी आ सकते हैं, राइट? तो वहां पे क्या करें, वहां पे कैसे करें? तो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट समथिंग गोइंग इनटू द गटर। मतलब अगर आप ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, इसको आप डुप्लीकेट कर रहे हो, तो यूजुअली लेआउट ग्रिड का क्या होता है, कि आपकी डिजाइन जो है वो गटर के अंदर नहीं जानी चाहिए, मतलब इस तरीके से आना नहीं चाहिए। आप कॉलम टू कॉलम इसको अलाइन करके रखो तो आपकी डिजाइन अच्छी दिखती है, तो गटर के अंदर आप मत डालो। बट अभी इधर चांस ही नहीं है कुछ, गटर के अंदर वो जाएगी ही। राइट? क्योंकि मुझे ज्यादा सर्कल्स डालने हैं, इस तरीके से मुझे बहुत सारे सर्कल्स चाहिए। सो दिस इज कंप्लीटली फाइन। ओके, दिस इज कंप्लीटली फाइन अनटिल एंड अनलेस यू आर मेकिंग श्योर कि आप मार्जिन्स के अंदर नहीं घुस रहे हो। ठीक है, अगर ये मैं डिलीट करती हूँ और ये 5 सर्कल्स है, इनको मैं प्रॉपरली अलाइन करती हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो बीच में जो भी हो रहा है दैट इज फाइन, गटर के अंदर जा रहा है डिजाइन दैट इज फाइन, बट यू मेक श्योर कि अलाइनमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट इज प्रॉपरली डन। तो इस तरीके से भी करो, आपकी डिजाइन प्रॉपरली अलाइन दिखती है, स्पेसिंग अच्छे से दिखता ही है। ठीक है, एंड जो मार्जिन है वो भी अच्छे से मेंटेन हो जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज अगेन डन इन ग्रिड पैटर्न। ओके, तो अगेन द नेक्स्ट डाउट यू माइट गेट इज ऑल अबाउट ग्रिड पैटर्न्स क्या बस वर्टिकल्स होते हैं, ये वर्टिकल लाइन्स है, राइट? हॉरिजॉन्टल, अगर आपको लगता है हॉरिजॉन्टल लेआउट आता है तो यस, आप वो दे सकते हो, बट देर इज नो सच स्टैंडर्ड्स फॉर वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लेआउट पैटर्न। ओके, हॉरिजॉन्टल दे सकते हो, रोज बना सकते हो, कॉलम काउंट वगैरह आप डाल सकते हो, मार्जिन्स डाल सकते हो, सब हो सकता है इसमें। बट इसके अंदर इस चीज के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं दिए गए हैं, क्योंकि अगर आपको ये करना है तो इसके लिए भी कुछ अलग पैटर्न है जो फॉलो कर लिया जाता है। दैट मीन्स आपको यहाँ गटर में वगैरह स्पेसिंग तो दिख रहा है। अभी आपका डाउट क्या आएगा पता है, कि मैम ये स्पेसिंग आपने कैसे डिसाइड कर ली है, ये तो कम लग रही है ना, राइट? गटर की तो 20 पिक्सल्स है और ये कम लग रही है, तो ये कैसे डिसाइड कर ली? तो इसका करने का एक ये होता है, यू व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ डिजाइन, यू फॉलो द टेबल ऑफ 4। सो लाइक 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, राइट? 4 5 जा 20। तो ये जो टेबल है आप इसको फॉलो करो फॉर द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। तो आपको इसके बीच की स्पेसिंग 12 दिख रही है, 12 कम्स अंडर द 4 टेबल, तो यू कैन गो विद द 12 स्पेसिंग। आपको लगता है कि नहीं, थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, यू गो एंड क्रिएट अ 16 स्पेसिंग, तो 16 दे दो। ठीक है, ज्यादा कर लो, इसको भी नीचे कर लो, इसको अलाइन कर दो प्रॉपरली। अभी इन दोनों को भी 16 का स्पेसिंग दे दो, तो ये जो डिजाइन है ये प्रॉपर ही दिखता है। ठीक है, ये मस्त ही दिखता है। तो आप ये फॉलो करो। 4 आप दोगे तो अगेन बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो आप 8 दो, 12 दो, 16 दो, 20 दो, 24 दो, 28 दो। तो अगेन आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है, बट आपको वो ये स्पेसिंग के लिए कॉलम ग्रिड की कोई जरूरत नहीं होती है, रो ग्रिड की कोई जरूरत नहीं होती है। ये बस आप 4 का टेबल से आप करते रहो, हो जाता है बहुत अच्छे से। Now, most importantly, same thing should follow for the text also. तो ये टेक्स्ट है, हेलो डाल दिया, यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल दूंगी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और ये टेक्स्ट जो है इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा कर देते हैं। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है आपको 0 दिख रही है, तो आपको लगता है आप 4 कर सकते हो तो प्रॉपर दिखेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा झोल होता है बाय द फिग्मा इटसेल्फ। तो उन्होंने वो रिसेंट अपडेट में उन्होंने वो अच्छा कर लिया है उनका यूआई। तो क्या होता था, आप ये देख रहे हो, यहाँ पे अगर अपन कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं
तो इसमें ना बिन फालतू का ये स्पेस जा रहा है। तो आप अगर मैं रेक्टेंगल के हिसाब से देखा हूँ तो ये स्पेस था यहाँ पे, राइट, ये यहाँ तक है। तो ये स्पेस दिख रहे हो, ये जो ब्लू लाइन्स है एंड ये हेलो का जो नो एज है, इसमें स्पेस जा रहा है। सेम थिंग इज हैपनिंग टू ऑल द टेक्स्ट। तो ये एक ब्लंडर था डिजाइन में। तो इसमें जब कोई भी अलाइनमेंट कर के लिए, स्पेसिंग के लिए जब जाता था, तो वो स्पेसिंग ज्यादा हो जाता था। अगर आप वही स्पेसिंग दो रेक्टेंगल्स में दे दो, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, तो आप इन दोनों का स्पेसिंग देखो, इट इज 15। यहाँ पे देखो 15 है। इसमें अगर आप चार स्पेसिंग दोगे तो चार का स्पेसिंग इतना कम है। बट आप देखो यहाँ पे तो चार का स्पेसिंग है, इतना बड़ा है, राइट। सो दिस वाज द ब्लंडर। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे टेक्स्ट में, यहाँ पे सेटिंग्स है, गो टू द सेटिंग्स, यू गेट द ऑप्शन टू वर्टिकल ट्रिम, कैप हाइट जो है टू द बेस लाइन, वर्टिकल ट्रिम करोगे। अब देखो हो गया। अभी इट इज एज टू एज, ये भी काफी बड़ा है, इसको भी वर्टिकल ट्रिम करेंगे। नाउ इट इज एज टू एज। नाउ यू सी इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, इट वॉज 18, इट वॉजंट 4, इट वॉज 18। तो अभी इसको कम करते 12 कर देते। अभी ठीक लग रहा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। तो इसमें आप जब भी टेक्स्ट को लेके आप स्पेसिंग दोगे तो मेक श्योर यू गो विद द वर्टिकल ट्रिम फर्स्ट एंड देन यू एडजस्ट द स्पेसिंग। एंड अगेन बहुत आसान है, 4 का टेबल फॉलो करो, हो जाएगा। एनी डाउट स्टिल हियर? यस, सो also make sure your cameras are on. Yes, so all good. Any doubts? Give a thumbs up. So you get the emojis there na, give a thumbs up. Okay, all right. So now let's understand the standard pattern for tablet. We'll get the tablet. कोई भी tablet लो, इसके अंदर ग्रिड डालो और इसका जो स्टैंडर्ड पैटर्न है, तो कॉलम के काउंट होने चाहिए 8, मार्जिन होनी चाहिए 32, गटर 20 की 20 सेम रहेंगी एवरीवेयर। तो दिस इज, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कॉलम काउंट इज 8, मार्जिन इज 32 एंड गटर 20 सेम। ओके, देन यू गेट डेस्कटॉप साइज। तो डेस्कटॉप लो, कोई भी डेस्कटॉप लो, ठीक है, मैक लो या विंडोज का लो, कोई भी डेस्कटॉप लो, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड है। सो द कॉलम काउंट इज गोइंग टू बी 12। मार्जिन, अभी मार्जिन यहाँ पे थोड़ा डिसाइड कर सकते हो आप 80 डाल सकते हो, 100 डाल सकते हो, 120 डाल सकते हो, 150 डाल सकते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा ना डेस्कटॉप का थोड़ा ना डिजाइन, खुद के डिजाइन पे डिपेंड होता है। तो ये आपको थोड़ा फ्रीडम मिल जाता है यहाँ पे। मार्जिन 80 या फिर 100 या फिर 120 या फिर 150, कोई कोई 200 का भी मार्जिन लेके चलता है। गटर सेम होने वाला है, ठीक है। और यहाँ का तो पता ही है, फॉर मोबाइल स्क्रीन कॉलम काउंट 4, मार्जिन 16। So this is all about the layout grid for three different screen ratios. Okay, इसमें सेम थिंग, आप टेक्स्ट डालोगे, सेम थिंग विल कम। आप देखो अलाइनमेंट देखो प्रॉपरली, मार्जिन में मत डालो, कुछ ट्राई करो कि गटर में डिजाइन नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये सब आप चीजें डालते रहो, होता जाएगा। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड grid in a better manner, I have a assignment for you guys. I want you all to create a
यस, आई वांट यू गाइस टू क्रिएट अ कैलकुलेटर डिजाइन। तो ये असाइनमेंट होने वाली है। तो ये जो है ये आईफोन का कैलकुलेटर है। आपका अगर कोई कैलकुलेटर आपको लगता है कि वो कर सकते हो ग्रिड्स में, आप वो ले लो, ठीक है, एंड्रॉयड का वगैरह जो भी होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। यू टेक द फ्रेम, नाउ आई विल टेक आईफोन 13 फ्रेम, ठीक है। आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे आपके कैलकुलेटर का, वो आपके सिस्टम में डालोगे, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। यू नो हाउ टू इंपोर्ट। फाइल में जाओ, फाइल, प्लेस एन इमेज, प्लेस द इमेज। तो इमेज जो आएंगी आपकी, आएंगी ऐसे बड़ी साइज की आएंगी, ठीक है। तो मैंने ये मिस्टेक करते हुए देखा है, लोग क्या करते हैं, ये बड़ी इमेज है ना, तो ये आईफोन का जो स्क्रीन है इसको बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे इतना बड़ा हो जाता है। तो ये बिगिनर मिस्टेक है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यू नेवर एवर मैनिपुलेट द साइजेस विच आर गिवन फॉर द फ्रेम्स। तो ये यहाँ पे जो साइजेस आपको दिख रही है स्टैंडर्ड साइजेस है, आप कभी मैनिपुलेट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं। तो अपन आईफोन 13 ले रहे थे, ये स्टैंडर्ड साइज है, तो आपको ये जो इमेज है इसको एडजस्ट करना है। तो इसका साइज देख लो, इट्स हाइट इज 844, तो इसको कर दो 844, हो गया परफेक्ट साइज, ठीक है। अभी ये जो असाइनमेंट है इट्स रेप्लिकेटिंग स्क्रीन असाइनमेंट। इसको मैं कर देती हूँ रेडियस, कॉर्नर रेडियस मोर, इट्स 60, कलर इज ब्लैक, ब्लैक कलर कर दो। इसको मैं देना चाहूंगी थोड़ा स्ट्रोक आउटसाइड, ठीक है। अभी क्या करना है, ग्रेड डालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेआउट ग्रेड करो, व्हाट आर कॉलम काउंट इज व्हाट 4, 16 मार्जिन। अभी देखो ये ब्लैक कलर की वजह से ना आपको ग्रेड अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे एक है, वो लोग दिए है, यस यस दिव्या। Yeah, that image, reference image, how do you get that? Yeah. इमेज, ये मैंने Yeah. स्क्रीनशॉट लिया है मेरे फोन से, Okay. Okay. यस। तो ये इमेज है। Do we have any plugins for that images? नो नो नो, इनिशियली आपको स्क्रीन रेप्लिकेट करना है, तो आप Okay. आपके फोन से ही स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नहीं तो मैं ये वाला जो है, ये फ्रेम, ये फोटो मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ, ग्रुप पे डाल देती हूँ, तो आप इसका ही कर लो। Okay. Actually, one thing, ma'am, I have created one grid before just now. It's ओके, showing like left side only, not full, इट इज व्हाट, only showing left part only, not completely visible. यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन फॉर दैट। आपके पास एक्सेस मिल रहा है, So I really don't know that. मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कैन शेयर योर स्क्रीन सो दैट मैं देख पाऊंगी फिर। Okay. ऑप्शन रहेगा म्यूट के पास। Okay. You can continue, ma'am. I'll tell you. ओके, विल टेक योर डाउट आफ्टर दिस सेशन, Yeah. ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ड्रॉ दिस सर्कल्स। अभी आपको पता है यहाँ पे एक प्रॉब्लम होंगी। चलो मैंने सपोज सर्कल ड्रॉ कर लिया 75 बाय 75 का, और मैंने इसको अलाइन किया प्रॉपर कॉलम में, बट आपको पता नहीं है कि ये कौन से एग्जैक्ट पोजीशन पे अलाइन है। आई ट्राई टू डू इट बट मुझे वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आप एक काम करो, आप आपके इसमें फिग्मा में यू हैव टू प्रेस शिफ्ट आर। व्हेन यू प्रेस शिफ्ट आर यू गेट दिस रूलर, यू कैन सी द रूलर। इससे आप लाइंस ट्रैक कर सकते हो, और ऐसे आप डाल दो यहाँ पे लाइन, परफेक्ट, यू गेट द परफेक्ट लोकेशन ऑफ वेयर द सर्कल इज। तो इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सर्कल्स करो, again you get one more line and draw the circles, get
कि यहाँ पे कितना अलाइनमेंट है, राइट? अरे तो इसको डुप्लीकेट करो, कीप डुप्लीकेटिंग, ठीक है? इसको फिर होने के बाद डिलीट कर दो. नाउ दिस इज डन. कैन एनीवन टेल मी हाउ टू ड्रॉ दिस शेप? ये शेप कैसे ड्रॉ करना है? दिस. The rectangle we can draw in रेक्टेंगल लेके other उसको corner side we can यस, curve. एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट. तो रेक्टेंगल लो, अलाइन करो अच्छे से एंड कम कर दे। बराबर. ये हो गया. Grade. तो लेआउट का काम यहाँ पे हो चुका है. मैं हाइड करके रखूंगी. यू कैन सी इट्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. तो इनको बस आप कलर दे दो इनका, इस तरीके से कलर पिकर से कलर्स दे दो. बाकी ये जो है, ऑलराइट, ये हो गया. अभी ये सब जो है ये आइकन्स है. तो आप आइकनिफाई प्लगइन रन करोगे, राइट? यहाँ पे जाओगे रिसोर्स एक्शंस में, you run the iconify plugin and then you search for the icons. Now I said I want divide icon, so you can see I can get a perfect one. Hey, this is the one, perfect, right? तो ये आएगा यहाँ पे. साइज बड़ी है तो 32x32. अलाइन करो अच्छे से एंड चेंज द कलर टू वाइट. इस तरीके से आई वॉन्ट टू सी द कैलकुलेटर डिजाइन, ठीक है? बाकी सब पूरा करो एंड आई वॉन्ट टू सी इट इन लेआउट. ओके, इतना क्लियर है? ओके, एंड नाउ आई ऑल्सो हैव वन मोर असाइनमेंट फॉर यू. आपको क्या करना है? सो लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. यू ऑल हैव स्पॉटिफाई इन योर फोन, राइट? तो आपको you have to play a song in a Spotify, in your Spotify, play any song, that doesn't matter. You can pause the song. Make sure this what we call it, this bar is open, right? Okay, and you have to be on the home page. Be on the home page. You see all this interface, your song should be playing, and then you take a screenshot of your Spotify screen, put it in Figma and replicate this entire screen. Okay, and keep one thing in mind, it is okay अगर आपको similar icons नहीं मिल रहे हैं तो you can go with, मतलब exactly same icons नहीं मिल रहे तो that is fine. आप कोई और icons के साथ जाओ. तो मुझे ये नहीं सुनना है कि मैम icons नहीं मिल रहे, क्या करूँ एंड ऑल. Keep that aside. I want to see the design and it should be done in grid layout. Okay, ग्रिड लो और मुझे प्रॉपरली ऐसी डिजाइन चाहिए. और आपको और एक डाउट्स ये आएंगे कि आपको मतलब यहाँ पे जैसे इमेजेस दिख रही है, आपको प्रॉपर वही इमेजेस नहीं मिलेंगी. डजंट मैटर, आप दूसरी इमेजेस डालो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मुझे इमेजेस से ज़्यादा लेना देना नहीं है, मुझे आपकी अलाइनमेंट देखनी है. आप टाइपोग्राफी और ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे डिटेल्स, इसका जो ओपेसिटी है वो 100% है. नीचे का जो ओपेसिटी है वो कम किया गया है, वो ग्रे स्केल में है. तो आई वांट टू सी हाउ properly you observe all these things and implement it in your designs. Moreover, I'll tell you one shortcut, okay? um and let me share the entire screen. Okay, so what you can do is, आपने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है? You have drawn this particular stuff and you want this Locked On Sports Atlanta का ये वाला image. Go to Google, you search for Locked On Atlanta, जो भी है, जो भी आपकी इमेज होंगी, you search for that. So let's say I have this. आप एक काम करो, यहाँ से आप राइट क्लिक करो, you see the option to copy image. Copy the image,
come back to Figma. You select the rectangle, right click again and you say paste here. तो आपका जो भी शेप होता है ना उसके अंदर वो इमेज पेस्ट हो जाती है. सो ये एक शॉर्टकट है जो आप इसके लिए यूज कर लो. ठीक है, उधर से कॉपी करो, इधर पेस्ट करो. ठीक है. सो ये ग्रिड लेआउट के लिए आपके पास दो असाइनमेंट है. एक कैलकुलेटर डिजाइन है और एक स्पॉटिफाई डिजाइन है, रेप्लिकेटिंग द स्क्रीन्स. ठीक है, समझ में आया? ऑलराइट. Now let's go and understand about the typography stuff. Second, yeah. Right. Okay. ओके, तो एक चार्ट है टाइपोग्राफी के लिए विच इज समथिंग दैट यू गाइस शुड मेक अ नोट ऑफ. ठीक है, टाइपोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. टाइपोग्राफी में जो चीजें होती है दैट इज टाइप फेस. मतलब आप कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे जैसे अगर कोई डिजाइन है, अभी यहाँ पे स्पॉटिफाई का ही देख लो. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिखती हूँ, ओके, गुड मॉर्निंग लिखती हूँ, तो ये फॉन्ट अलग है और उनका जो फॉन्ट है वो अलग है. राइट. तो आप सर्च कर सकते हो रोबोटो फॉन्ट. इसको रोबोटो फॉन्ट में डाल सकते हो. इट्स नॉट अ रोबोटो फॉन्ट, इट्स मॉन्सेरेट. यूजुअली एप्पल डिजाइन जो होती है वो रोबोटो फॉन्ट यूज करते हैं. बट एनीवेज, ओके. सो टाइपोग्राफी में फॉन्ट्स मैटर्स. तो मैं आपको लिस्ट दूंगी टॉप मोस्ट 10 फॉन्ट्स विच आर बीन यूज्ड फॉर डिजाइंस. ठीक है, तो जैसे एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट्स आप देखते हो तो दोज प्रोडक्ट, कोई भी डिजाइन आप देखते हो तो दोज आर डन इन रोबोटो फॉन्ट. ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी वेबसाइट अगर आप डिजाइन करोगे तो फॉन्ट चूज करना आपके ऊपर होता है. बट एनीवेज आई स्टिल गिव यू कि इंडस्ट्री में टॉप 10 फॉन्ट्स कौन से यूज किए जाते हैं, तो यू कैन मेक. आप जब भी डिजाइन करोगे तो उनमें आप देखोगे. ठीक है, तो उनको कहते हैं टाइपफेस. अपन अपने फिग्मा में वी हैव एन नंबर ऑफ फॉन्ट्स, सब नहीं यूज कर सकते. ठीक है, देन उसके बाद साइजेस. अभी जैसे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट स्क्रीन्स. जैसे आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे वी नो वी हैव मोबाइल फ्रेम, वी हैव आईपैड फ्रेम, वी हैव मैकबुक दैट इज डेस्कटॉप फ्रेम. तो इसके लिए अगर आप एक डिजाइन सिस्टम तैयार करते हो, जैसे अगर मुझे यहाँ पे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट लिखना है और वो भी हेडिंग में डालना है, तो उसके लिए मुझे, आपके पास मतलब आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा कि भाई कौन सा साइज में यूज करूँ. उसके लिए यू कैन रेफर टू दिस चार्ट. अगर आपको जब भी हेडिंग यूज करना है तो यू कैन गो विथ H1, H2, H3, H4, H5, H6. You can take a screenshot of this, okay, or else you can just make a note of this. H1 font is size of 96, H2 is 60 pixels, H3 is 48 pixels. ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि आप H1 font यूज करो, साइज यूज करो, so we can just change it from here and call it like 96. ठीक है, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है अभी कि आप ये जब फॉन्ट यूज करोगे ये साइज का, तो दैट इज ओनली डन इन द डेस्कटॉप वर्जन. राइट, यू कैनॉट यूज द सेम साइज इन अ मोबाइल वर्जन. देखो कितना बड़ा है. सो ये कॉमन सेंस है. तो इसके लिए आप H4 फॉन्ट यूज कर लो. H4 फॉन्ट जो है दैट इज 34. तो इसको आप चेंज करो, लेट्स से वी मेक इट 34.
ठीक है. So this is something that you can use for a mobile screen. And this is again something you can use for a tablet screen also. तो ये बस रेफरेंस के लिए है कि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है. तो फर्दर ऑन आप एच हेडिंग के लिए आप एच वाले इतने फॉन्ट्स यूज कर सकते हो. सब टाइटल्स के लिए 16 पिक्सल्स एंड 14 पिक्सल्स. एंड बॉडी टेक्स्ट के लिए 16, 14 एंड 12 पिक्सल्स. 12 के नीचे नहीं जाना है, बिकॉज इसके नीचे आप जाओगे कोई भी डिजाइन, कोई भी मतलब साइजेस के लिए, तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है. 10 इज अ मिनिमम थिंग. 10 के नीचे जाओगे तो विजिबल नहीं होते टाइपोग्राफी. ठीक है. तो 12 पकड़ के चलो. लेट्स से आई हैव दिस डिजाइन. आई हैव टू पुट इट ओवर हियर. ठीक है. तो ये कुछ मुझे एक कॉलम लिखना है, यहाँ पे मैं डालूंगी. तो यहाँ पे आप देखो, ये जो साइज, ये जो हेडिंग की साइज है, ये यूज की है मैंने 48. सो 48 कम्स अंडर H3 फॉन्ट. राइट. H3 साइज में मैंने हेडिंग डाली है, और उसके अंदर एक सब हेडिंग भी डाला है विच इज ऑफ अ साइज ऑफ 24. सो 24 इट्स द H5 हेडिंग. राइट. एंड उसके बाद मैंने एक बॉडी टेक्स्ट डाला है, दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन डाला है. सो डिस्क्रिप्शन यू कैन सी इट इज इन द 14 पिक्सल्स. तो ये भी अगर आप यूज करते हो आपके स्क्रीन्स में तो वो आ जाता है बहुत अच्छे से. ओके. सो नाउ यू कैन सी, राइट. इट्स प्रॉपरली विजिबल. दिख रहा है कि भाई ये तो हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये बॉडी टेक्स्ट है, एवरीथिंग इज रीडेबल, एवरीथिंग इज फाइन. राइट. तो इस तरीके से टाइपोग्राफी का आप यूज करो, ये चार्ट का आप यूज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड टाइप फेस जो है वो मैं एनीवेज आपको दूंगी. मोस्ट कॉमनली जो यूज टाइप फेस है विच इज रोबोटो एंड मॉन्सेरेट. ओके. मोस्ट कॉमनली यूज्ड. इसके अंदर और आते हैं जैसे हेलवेटिका आता है, कॉमिक sans आता है, टाइम्स न्यू रोमन, या फिर इंटर आता है. ये फॉन्ट्स है, ये आप यूज कर सकते हो. नॉर्मल फॉन्ट्स है, कुछ इस तरीके से दिखते हैं. ठीक है. सो अगेन, एंड यू अंडरस्टूड द दिस पार्ट, राइट. स्पेसिंग पार्ट ऑल्सो. इसको पहले वर्टिकल ट्रिम करना पड़ेगा. सेटिंग्स में जाके वर्टिकल ट्रिम करो, एंड देन यू यूज द स्पेसिंग इन बिटवीन देम. तो और अच्छे से अलाइनमेंट के साथ वो दिखता है. ठीक है. एनी डाउट स्टिल हियर? नो. व्हाट अबाउट दिव्या? No. Okay, great. All right. Now we'll talk about the one last topic, that is about iconography. ठीक है. अभी आप आइकन्स कैसे लेते हैं, यू नो दैट. यू गेट द आइकॉनिफाई प्लगइन फॉर दैट. ठीक है. अभी नाउ लेट्स सर्च फॉर होम आइकन इन जनरल. तो यहाँ पे आप देखोगे वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, लाइक सो मेनी ऑप्शंस. वी कैन गेट दिस वन, we can get this one, we can get this one. Moreover, when if you just keep on scrolling, we get so many icons, and there are so much in like different styles of icons, right. आप कोई भी कभी भी animated icons कभी यूज मत करना. It's actually very much stupid thing to do to use an animated icon in a design. नॉर्मल आइकन से आप यूज करो जब भी होम आइकन आप यूज करोगे, राइट. तो इस तरीके से कुछ आइकन्स होते हैं. अब जैसे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं, आप देख रहे हो कुछ एनिमेशंस आ रहे. एनीवेज, तो टेक अ लुक एट दिस आइकन्स. ओके. हर एक आइकन अलग अलग है. सो दिस इज अ आइकन विच इज कॉल्ड एज सॉलिड आइकन. ठीक है. क्योंकि इसको इसके अंदर फिल है, पूरा का पूरा सॉलिड है. दिस आइकन इज कॉल्ड एज आउटलाइंड आइकन. ठीक है.
and this is unfilled icon. Actually इसका भी एक कुछ नाम है. I don't remember it immediately. Again, this is again a solid icon. All right. और इनके आप sizes देखोगे. It is 24 by 24. This is 24 by 24. This is again 24 by 24. And this is 16 by 16. तो इसको भी 24 by 24 करते हैं. ठीक है. So when you use icons in your design, mostly यहाँ पे अभी जैसे home icon है वो navigation bar में use होता है. So let's draw a navigation bar quickly and use a home icon over here. And यहाँ पे अगर मैं और एक आइकन डालती हूँ उसके साइड में, लेट्स से अ प्रोफाइल आइकन. ठीक है, फिर से प्रोफाइल लेती हूँ और ये वाला आइकन इसके साइड में डाल देती हूँ. ठीक है, तो आप डिफरेंस पता कर पा रहे हो बिटवीन बोथ द आइकन्स. द डिफरेंस इज दैट ये फिल्ड है और ये अनफिल्ड आइकन है. राइट, ये सॉलिड आइकन है, दिस इज जस्ट आउटलाइन आइकन. तो इससे एक चीज पता चलती है कि अभी आपका लोकेशन कौन सा है, मतलब अभी आप कौन से पेज पे हो, ये भी पता चलता है. सो दैट इज लॉज दैट वी विल बी लर्निंग इन फर्दर सेशंस. दिस लॉ कम्स अंडर विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. तो अभी ये आइकन्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप एक काम करो, आप इंस्टाग्राम खोल लो. ठीक है, इंस्टाग्राम में यू सी नीचे नेविगेशन बार है. नेविगेशन बार यू सी होम आइकन, यू सी सर्च, यू सी ऐड योर पोस्ट एंड ऑल, रील्स आइकन एंड योर प्रोफाइल आइकन. तो शिफ्ट योर होम पेज टू गो टू द रील्स पेज. ठीक है, एंड यू सी द चेंज ऑफ अ होम आइकन. When you are on home page, the home icon is always solid, it's always filled icon. And when you go to the Reels page, the home page icon shift to from solid to outlined icon. Yes. ठीक है, तो ये चीजें होती है important. दिस टेल्स यू कि आप अभी कौन से पेज पे हो, वो आइकन हाईलाइट हो जाता है. राइट, सो दिस इज लॉज में तो आप पढ़ोगे ही, but anyways today we are having short session on icons. तो ये चीजें पता होनी बहुत important होती है. now let's get into a little bit. 3-4 चीजें हैं आइकॉन्स के बारे में जो आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी. एक तो let me share the screen, another page I mean. okay, आइकन्स के बारे में ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज अबाउट साइजिंग, देन अलाइनमेंट, क्लियरेंस एंड कलर. ठीक है, साइजिंग दैट मीन्स आप कौन से साइज के आइकन यूज कर पाते हो. सो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यू कैन यूज दिस 4 साइजेस इन योर डिजाइन. ठीक है, आप अगर कुछ आइकन्स जो होते हैं वो मोस्टली मोबाइल स्क्रीन के लिए यूज किए जाते हैं. लैपटॉप सॉरी विंडोज या फिर डेस्कटॉप में दे आर यूज्ड बट कम क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं. तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज गो विद द साइज ऑफ 24 by 24 पिक्सल्स और एल्स 32 by 32 पिक्सल्स. दिस आर स्टैंडर्ड साइजेस यू कैन यूज. 16, 20, 24, 32. ओके, इससे 16 जो साइज है वो बहुत छोटी हो जाती है. आप फिग्मा पे आ जाओ, फिर से एक सेकेंड फिग्मा पे दिखा देती हूँ. तो ये जो आइकन की साइज थी, दिस इज 24 by 24. अगर मैं इसको चेंज करके 16 by 16 कर देती हूँ, ये बहुत छोटी साइज हो जाती है. और इस स्क्रीन को मैं प्ले कर देती हूँ. डिवाइस. okay, so you can see the difference between these two icons. 24 by 24 is properly seen, 16 becomes very small. तो ये आप यूज कर सकते हो, बट standard wise 24 by 24 is commonly used size of icon. ठीक है, now let's get back to some of the theory part. ठीक है, उसके बाद you have to understand the placement of the icons. आप icons किस तरीके से प्लेस करते हो, और उसके साथ अगर आप टेक्स्ट डाल देते हो तो उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर कैसी होनी चाहिए. ओके, सो उसके लिए आप ये वाला एग्जांपल देखो.
ये सेव एक टेक्स्ट है और उसके साथ में जो आइकन डाला है, मोस्टली आप ये चीजें ना बटन्स में देखते हो, ठीक है, Yeah. बटन्स में आप यूजुअली ये चीजें देखते हो। तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ये साइजिंग के अंडर आता है एक्चुअली, साइजिंग इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। तो लेट्स से आप अगर एक कोई बटन यूज कर रहे हो, ठीक है, आई विल गो बैक टू फिग्मा। आप एक बटन बना रहे हो डाउनलोड, और इसका जो साइज है वो रखते हैं अपन 20, ठीक है। इसको बनाती हूँ मैं, फिल में डाल देती हूँ ग्रीन कलर। ओके, ये हो गया बटन। ओके, अभी इसके अंदर आई वांट टू पुट अ आइकन ऑफ अ डाउनलोड बटन। तो इनिशियली आई विल गो विद दिस डिजाइन। तो ये आइकन की जो साइज है दैट इज 24 by 24। आई विल पुट इट इनसाइड। ओके, सो नाउ यू कैन सी द अलाइनमेंट ऑफ दिस इज प्रॉपर। तो आप एक रूलर से आप देखो, अलाइनमेंट इज प्रॉपर, और आप देख रहे हो बट डाउनलोड का जो बेस है वही आइकन का बेस आ जाता है, राइट। तो ये दोनों जो है ये बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक अगर इसको मैंने गलती से कर लिया 32 by 32, तो ये चीजें साइजिंग में थोड़ी इम्प्रॉपर लगती है, राइट। तो इसलिए हमेशा 24 by 24 इज अ परफेक्ट साइज, और ये बटन्स में यूजुअली यूज किया जाता है। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक ओवर हियर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी अलाइनमेंट, नाउ अलाइनमेंट इज अगेन इम्पोर्टेंट स्टफ। आपका जो बटन होता है वो प्रॉपर सेंटर अलाइन होना चाहिए, ठीक है। यू कैन सी what is the good design and what is the bad design. If you have a icon which has a background of any shape, then it should be properly centrally aligned. आप उसको ऊपर नीचे मत करो, और अलाइनमेंट के लिए बहुत सादी ट्रिक है। लेट्स गेट बैक टू फिग्मा टू टेल यू इन मोर डिटेल। बहुत सादी ट्रिक है, दैट इज जस्ट कि अभी देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे आई यूज्ड एन आइकन, राइट, एंड आई वांटेड टू अलाइन इट प्रॉपरली। तो मैं इसको अगर ऐसे गलती से रख देती हूँ, आई कैन चूज दिस एंड आई कैन चूज द एलिमेंट, और यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाता है, सेंटर अलाइन, परफेक्ट। तो ये आप प्रॉपरली देखो, अलाइनमेंट एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब चीजें आइकन्स के बारे में इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, क्लियरेंस, क्लियरेंस एज इन आपको जो है ये देखो, do not follow the clearance rule to allow your eligibility and an optimal touch experience. Clearance and touch experience goes hands in hand, ठीक है। Let's again get back to Figma to understand this. ओके, तो यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी, ये जो आइकन था, ये ये मैंने अगर गलती से ऐसे प्लेस कर दिया था तो इसका टच चला जाता है, राइट। इसको अगर प्ले करते हो तो इस ये कॉर्नर में जाता है, इसका टच चला जाता है। तो आइकन के अराउंड का क्लियरेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगेन अलाइनमेंट का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। मेक श्योर इट इज प्रॉपरली अलाइंड। इवन अभी यहाँ पे भी ये जो बटन है, तो अगर मैं डाउनलोड हटा दूं और बस आइकन रखूं, ठीक है, तो ये प्रॉपर साइज में होना चाहिए कि अपना जो थंब है उस पे प्रेस होना चाहिए बहुत आसानी से। यू अंडरस्टैंड इट इज अ बटन, यू अंडरस्टैंड आइकन्स आर समथिंग विच हैज अ हाइपरलिंक टू इट, राइट। देन आपका जो टच होता है वो आसानी से उस पे होना चाहिए। तो उस तरीके से आप क्लियरेंस रखो, अलाइनमेंट करो, ठीक है। एंड सी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे फिर से मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ये तो इंडिविजुअल आइकन्स के बारे में था, अगर लगता है कि इसके अंदर और एक आइकन होना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो अगर कोई ये डिजाइन इसमें डालेगा एंड इसको करेगा,
प्ले। तो नाउ आप देख रहे हो द जो इंटरैक्शन का जो सर्कल आ रहा है, अगर मैं होम पेज पे क्लिक करना चाहती हूँ तो मे भी गलती से डाउनलोड बटन पे भी क्लिक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लियरेंस का इशू आ रहा है। करेक्ट। तो अभी इसको मुझे ऑब्वियसली स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो दिस वे नाउ यू कैन से इट इज वेरी प्रॉपर। अभी ये मतलब ये जो है वो प्रॉपर थंब साइज है, तो थंब आप प्रेस आसानी से कर सकते हो, तो वो स्पेसिंग से आता है। ठीक है। कलर, कलर्स, ओके। देर इज अनदर यूएक्स लॉ। यूएक्स लॉ एक है, ह्यूरिस्टिक लॉस कहते हैं उसको, विच मैम इज कंसिस्टेंसी एंड, यस। मैम वो स्पेसिंग कैसा किए थोड़ा फिर से दिखा सकते हैं? हाँ एक सेकेंड, ये जो है ना, ये ना, जी मैम। ओके। ये जो है ये मैंने एक्चुअली ऑटो लेआउट में डाल के रखा है। आप नहीं कर पाओगे अभी, मैं एनीवेज आपको वो पढ़ाने वाली हूँ डिटेल लेक्चर्स लेके, बट लेट्स से इनके बीच में का स्पेसिंग करते हैं। पहले तो इनको अलाइन करते हैं प्रॉपरली। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्पेसिंग आ जाता है, ये ऑटो लेआउट में नहीं है तो आपको इनिशियली ये ऑप्शन मिलेगा, तो ये ऐसे स्लाइड हो रहा है, राइट। एंड अगेन इसके लिए आप बेस्ट यूज करो अपना ऑटो सॉरी लेआउट ग्रिड। तो लेआउट ग्रिड है, इसके अंदर डाल दो, इसका बीच का देखो, इसको बीच में अलाइन करो, प्रॉपर स्पेसिंग आ जाता है। करेक्ट। ये जो था ये ऑटो लेआउट में था, इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा थोड़ा। ये मैं आपको सिखाऊंगी ऑटो लेआउट कैसे करते हैं। ऑटो लेआउट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक। जी मैम। Okay. हाँ, so as I was saying, there is a law, heuristic laws, UX law एक है जो है consistency and standards। तो कंसिस्टेंसी आइकन्स के लोग आइकन्स को लेके भी था। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट डिजाइन कौन सा है और रॉन्ग डिजाइन कौन सा है, बिकॉज ओवर हियर द कलर्स आर चेंज, राइट। एंड इफ यू ब्रिंग सो मेनी कलर्स ओवर हियर ऑल्सो, यू कैन सी सेटिंग का आइकन है एंड यहाँ पे सो मेनी कलर्स आर देयर, तो ये एक डिजाइन में कंसिस्टेंसी नहीं लाता है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंसी आइकन्स को लेके मेंटेन करो। यहाँ पे भी मैंने इनिशियली जब ये आइकन था ये ब्लैक कलर में था, राइट, ये वाइट नहीं था, ऐसे ब्लैक था। सपोज ये था, sorry, ये था वाइट कलर में। तो अगर सब ब्लैक है और एक अकेला वाइट है, तो अगेन कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा इशू है। तो ये नहीं चाहिए, सब ब्लैक है तो सब ब्लैक रखो, सब वाइट है तो सब वाइट रखो। ठीक है। सो ये चार चीजें थी आइकॉन्स को लेके दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके। आप साइजिंग अच्छे से दो, साइजिंग समझ में आया, 4 साइजेस आर देयर। अलाइनमेंट अच्छे से करो, अलाइनमेंट कम्स विद द स्पेसिंग, अलाइनमेंट एंड क्लियरेंस हैंड इन हैंड जाते हैं, इट्स ऑल अबाउट द स्पेसिंग। एंड देन कलर, आप कलर्स को लेके भी कंसिस्टेंट रहो आइकन्स में। ठीक है। ऑलराइट। तो अभी आज का जो असाइनमेंट है, अम, आप अलग अलग आइकन्स ट्राई करो, आइकन्स लेने का ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड कि 16 by 16 पिक्सल्स कितना साइज होता है, कितना छोटा होता है, एंड 32 by 32 विच इज मैक्सिमम साइज कितने साइज का आता है, एंड 24 by 24 कैसा होता है। डिजाइन में नेविगेशन बार ड्रॉ करके देखो, उसमें आइकन्स डाल के देखो कौन सा परफेक्ट डिजाइन आता है, कैसा होता है, तो ट्राई आउट दैट। एंड नेक्स्ट थिंग इज इतना ही आइकन्स को लेके, एंड आपके ये 2 असाइनमेंट्स तो है ही। ठीक है। सो आई वांट यू गाइस टू ट्राई आउट all the 3 assignments for today and send me up, और आप एक ही फाइल में कंपाइल करो, ठीक है, एंड शेयर द फिग्मा लिंक ऑन द ग्रुप, आई गिव फीडबैक। तो फिग्मा फाइल में ही आपको कमेंट्स में फीडबैक मिल जाएगा। ओके। ओके, एनी डाउट्स यू हैव? नो, विल प्रैक्टिस एंड विल लेट। यस यस। तो आप जब रेप्लिकेशन करोगे ना, स्पेशली 40 स्पॉटिफाई स्क्रीन का, तब आपको समझेगा कि क्या चैलेंजेस है। यस, तब आपको डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो डाउट्स, क्लियरिंग अपन रखेंगे, डाउट क्लियर करेंगे।
Yes, Divya, what was your doubt? कि आपका No, क्या? Yes. yeah. Actually, after completing this, it goes to only left side only in preview. That's it. आप स्क्रीन शेयर करो, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं समझेगा. Actually, this one. आप लैपटॉप से मीटिंग देख रहे हो, राइट? Yeah. आप लैपटॉप से मीटिंग हो ना ज्वाइन? No, actually, I'm एक सेकेंड. attending in my phone. तो आप कैसे करोगे? सो Yeah, I'm ओके, doing it. So, आप कैमरा से दिखाओ फिर. हम्म. yeah, this one only. क्या हो रहा है? This one, first thing. हम्म. Yeah, I want to play this one. हाँ. Yeah, this side. It's ओके, not गेट fitting to बैक. the screen. Yeah, this one. गो बैक टू द स्क्रीन. ओके, सिलेक्ट द स्क्रीन. कौन सा Yeah, लिया आपने? आईफोन? हाँ, सिलेक्ट द 16. स्क्रीन और प्रोटोटाइप मोड से नहीं, डिजाइन मोड पे जाओ और Okay. मुझे स्क्रीन पे दिखाओ. प्रॉपर्टीज Yeah, दिखाओ उसका. क्या साइज है? विड्थ एंड हाइट क्या है? 339. Height was कौन सा 789. फ्रेम लिया है? This आईफोन iPhone 16. 16 Pro. हाँ, आईफोन 16 प्रो का आप साइज देखो क्या है. और एक एक काम करो, Okay. कम बैक. हाँ, यहाँ पे स्क्रीन साइड को ले लो, उसको ड्रैग करो, साइड को लो. नहीं 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 नहीं. अब लेफ्ट साइड. आई 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 टोल्ड यू नॉट टू मैनिपुलेट द स्क्रीन साइज. मैं वही आपको समझाने वाली हूँ अभी. अह, स्क्रीन जूम कीजिए. फिग्मा स्क्रीन हाँ, जूम कीजिए. एक सेकेंड. होल्ड योर फोन प्रॉपरली फर्स्ट. ठीक है. हाँ, ये जो उसका साइड में जो स्क्रीन है वो डिलीट करो. हाँ, ये डिलीट करो. हाँ, अभी फ्रेम में जाओ. फ्रेम, नीचे फ्रेम में जाओ. नहीं नहीं नहीं, एफ क्लिक करो. एफ एफ टाइप. हाँ, आईफोन का फिर से वही सेम फ्रेम लो, उसके साइड पे वही फ्रेम के साइड में और एक फ्रेम लो. सी द साइज. Yes. What did you do? You manipulated the ratio of the screen. I am telling you 1000 time now. Do not manipulate. आपका इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है. आपने इतना छोटा मोटा करके रखा है, क्या करके रखा है पता नहीं. यही तो नहीं करना है ना. स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करो, इसको मैनिपुलेट मत करो. और अब इसको प्ले करोगे तो हो जाएगा. ओके. दिव्या जी आप आई एम सॉरी. Sorry. आपकी जूम लिंक जो है, जूम एप्लीकेशन आपका आई मीन डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है. मतलब दोनों हाँ, फोन को से एक ही मत स्क्रीन करो. में दिख जाएगा. Yeah, yeah. और फोन पे ये सब समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. बड़ी स्क्रीन पे ही रहो. Okay. डाउनलोड द एप्लीकेशन. और एल्स आप क्रोम पे भी कर सकते हो. डाउनलोड की भी कोई जरूरत नहीं है. Okay. यस. ऑलराइट. Thank you. Yeah. ओके गाइस, देन आई विल सी यू ऑन मंडे. Till then, do your assignments. At least till Sunday, I want to see the links. Okay. Okay. Okay.